So today's conversations is really really special क्योंकि आज जो मेरे साथ celebrity है, she has the same journey as I've had. She has been a journalist. She is an actor. And she is a very powerful influencer. Only difference is that she is way sexier, she's way good looking, and she's way more successful, and I'm really happy to take you to Garima's Good Life. Hi! Thank you so much for that beautiful and sexy introduction, Ronak. I knew it, but आपसे ही सीखा यार मैंने, because let me tell you, Garima has been my boss, and when I was working with this really big entertainment channel in Mumbai, she was my boss and she recruited me, and we have had such crazy times. We'll come to that और क्या क्या experiences हुए stars के साथ वो भी बताएंगे. But firstly tell me, Garima 2 million plus on YouTube, some 238,000 on Instagram, Facebook तो मैं इतना भी करता नहीं हूँ, तो I know some millions वहाँ पर भी, हर जगह blue ticks है, वहाँ पे बड़ा सा एक golden button है जो मैंने पहली बार देखा है लाइफ में. तो how much of it was planned? Nothing, if I tell you so. Nothing. You know me, Ronak. I can believe, yeah, you know me for the last, 14 years now? Yeah. है ना? 2009 से. 2009 से, yeah, almost 13 years now. Yeah. मैं लाइफ में कुछ भी प्लान नहीं करती हूँ. इनफैक्ट मेरी बहुत ही ख़राब टेंडेंसी है, जब भी मैं किसी चीज़ के पीक पे पहुँचती हूँ ना अपने करियर में, आई विड्रॉ फ्रॉम देयर एंड आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, विच इज़ लाइक रियली स्टूपिड एट टाइम्स, बट आई थिंक दिस टाइम इट रियली पेड ऑफ, एंड you've like summarized my journey in the beginning, and now I can say कि everything has come together so beautifully for me कि things are like just amazing and perfect right now. I know because what she's saying is right, क्योंकि ये जब बहुत बड़े चैनल में थी, इसने धड़ाम से जॉब छोड़ दी थी, और तब मैं मुंबई में था. I was like, ये बंदी कैसी है, मतलब बड़ी जॉब्स करती है, बड़ी सैलरी मिलती है, अच्छे पोजीशंस होते हैं, then she quits also, like at a drop of a hat. So decisions कैसे, like how do you take these decisions? The toughest one was quitting Viacom 18 Motion Pictures, where Okay. I was Yeah. on a very good position, and it was a dream job for any person जो corporate में काम करने के लिए aspire करेगा. Yeah. Fat salary, good position, everything. But मुझे हमेशा ना अपने दिल की आवाज़ सुनने की आदत है. There comes a time जब मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि यार बस हो गया, अभी मन नहीं कर रहा, कुछ और करना है लाइफ में, कुछ और एक्साइटिंग ट्राई करना है. Though it's always like diving on the deeper end in the sea, and I don't know how to swim actually, in real life it's a pun, but it's really funny. But मैं फिर भी छलांग मार देती हूँ और फिर मैं अपने आप swim करना सीखती हूँ. Yeah, and God has been very kind. Thankfully, I'm very blessed कि मैंने कभी मतलब कोई बहुत ख़राब टाइम नहीं देखा है, and things always work out eventually for me. Yeah, because a lot of people who watch my channel, they always also, we talk about doing a job and doing your own business, going solo, doing things on your own. तो उनके लिए it's a very big inspiration, because when Garima was starting Garima's Good Life, I remember the first video, and YouTube पे hardly like एकदम slow से journey शुरू होती है. 100-200 ऐसे आज millions में है, but it takes so much dedication, and I always say this, that consistency is the key, right? Whether you're good or bad, I agree. Consistent हो तो ढिंचैक पूजा क्या और श्रेया घोषाल क्या सब, मतलब everybody is successful as long as you are consistent. Consistency is very important. In fact, in whatever you do in life, in everything. Yeah. जहाँ पे थोड़ा आप डामाडोल हुए, जहाँ पे out of sight is out of mind. Yeah. And social media पे especially, like I have seen you have been so consistent with your work. Yeah. And after I remember that conversation we had 2 years back, and I was like, मैं YouTube पे कर रहा हूँ कुछ, इतने सालों से चैनल है, I'm doing this, and she gave me a few tips, and then I started following it, and I realized that she's saying the same thing in different words, that you have to be consistent. You can't just, and you cannot ask anyone the recipe for success. तो सबके लिए अलग अलग होता है. Now I realize it as I see you. But let's rewind back थोड़ा बहुत, because I think the exciting part of this conversation is going to be that part, not more so much about our YouTube channels. तो हम लोग ना एक बड़े एंटरटेनमेंट चैनल में काम करते थे, जहाँ पे बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ आते थे, और गरिमा जो थी बॉस थी वहाँ पर, और आई यूज्ड टू मेक कपल ऑफ शोज ओवर देयर. तो कोई वहाँ की कोई एक्सपीरियंसेस टास्क के साथ दैट यू वांट टू शेयर, व्हिच लेफ्ट यू इन स्प्लिट्स, और मे बी लेफ्ट यू कंप्लीटली शॉक्ड?
यार मैंने ना बहुत सारे स्टार्स के साथ पंगे लिए हैं और मैंने बहुत लड़ाइयाँ करी हैं बहुत सारे एक्टर्स के साथ. आई वॉज इनफेमसली फेमस फॉर आस्किंग देम द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस डिस्पाइट माई सीनियर्स एंड माई बॉसेस टेलिंग मी कि शाहरुख खान से ये सवाल बिल्कुल मत पूछना, सलमान को लड़ाई के बारे में बिल्कुल मत पूछना. एंड द फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू गो इन माई इंटरव्यू एंड डू इज आस्क दैट क्वेश्चन ओनली. मुझसे इनफैक्ट सलमान और शाहरुख की जब लड़ाई हुई थी तो अर्जुन कपूर वाज वांटेड के टाइम पे, हाँ वो लड़ाई के बाद दे वर नॉट टॉकिंग ना, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था दोनों का एंड दे वर लाइक कंप्लीटली ऑन नॉन टॉकिंग टर्म्स एंड व्हाटएवर. इट वाज अ बिग न्यूज़ फ्रॉम द इंडस्ट्री और वांटेड आने वाली थी. अर्जुन कपूर वाज द ईपी ऑन दैट फिल्म. Oh, अच्छा, executive producer. EP assistant director, sorry, he was AD बोनी कपूर के साथ में. एंड मैं गई वहाँ पर, मुझे पहले ही बोला था सलमान से लड़ाई के बारे में मत पूछना, और मैंने भाई साहब सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछे एंड अर्जुन कपूर लिटरली टुक माय टेप एंड ही वाज लाइक आई एम कॉन्फिस्केटिंग दिस, ये क्या है, तुमको मना किया था. तो फिर मैंने लड़ा के अपनी टेप वापस भी ले ली, वो इंटरव्यू भी चलाया और बहुत मजा आया. That's what journalists would do, an ideal journalist should do. Yeah. Like even in Dubai when I go no for press conference, सब लोग ऐसे prim prom बैठे होते, कोई सवाल. I'm the only one who asks like difficult questions, you know. और वो भी mildly difficult, वहाँ पे इतना भी नहीं होता है. But yeah, I can imagine that. Of course, अपने आप को हम अगर जर्नलिस्ट बोलेंगे तो कुछ तो हमें ऐसे सवाल पूछने थे ना. To ask difficult questions. Yeah, but now things have become very different, I guess. Yeah, नहीं चाहते लोग. Intolerant and insensitive बहुत हो गए लोग. But any other big star stories that you want to share? Maybe, oh, you remember the Nana Patekar story? Oh God, I tell that to everyone. You know, like it was so new. So I have told this before, but for those who have joined in now, and especially those who are watching Garima, so I was very new. मेरा दूसरा तीसरा शो था. We were like producers, directors of the show. हंसी आ रही है. तो गरिमा, तब हमारे पास कोई PCR या ऐसा कुछ नहीं था. वहाँ बैठ के हम डायरेक्ट करते थे शो, मतलब टॉक शो था. तो यहाँ पे जैसे हम दोनों बैठे हैं तो नाना पाटेकर वाज देयर एंड आवर होस्ट वाज देयर एंड आई वाज डायरेक्टिंग. तो बीच में अभी कुछ अगर ठीक से नहीं जा रहा है तो बोलेंगे ना कट प्लीज़, ये लाइन फिर से बोल दीजिए, ऑडियो नहीं आया, ये वो. तो 2-3 बार ऐसा हुआ एंड गरिमा बोला था मुझे कैसे ही करना, हम ऐसे ही करते हैं. नाना पाटेकर की सनक गई. ही जस्ट स्टूड अप एंड लेफ्ट. इज लाइक तुमको आता नहीं है, तुम अपना काम नहीं करते ठीक से, मैं बोल रहा हूँ तुम बीच में टोक. और होस्ट को बोला ये बच्ची को इतना परेशान कर दिया. He came back to hug her, only to hug her. I don't know. It was crazy. Anyway, Nana Patekar had always been a petrified. I was like, मेरा दूसरा तीसरा दिन है जॉब पे, मेरी जॉब चली जाएगी. And गरिमा is like, it's okay, हमारा शो वैसे भी हो गया है, सिर्फ बाय बाय टाटा बाय बाय वाला पार्ट नहीं हुआ है, वो हम कुछ एडिट में कुछ संभाल लेंगे. We've had some crazy experiences. I had a literal like spat with शाहिद कपूर. उसने जाके मेरी शिकायत कर दी थी, बोला किस हिटलर को बिठाते हो यहाँ पे शो करने के लिए. So yeah, I mean celebrities यार अपने खुद के थोड़े so called tantrums और अपने 6 बजे सुबह 6 बजे बोल के शाम को 6 बजे आते हैं और काफी कुछ होता है. There are so many things, of course. But you know, the whole time that you were in Zoom, did you ever think that you yourself will become a celebrity at that time? यार सपना तो मैंने बचपन से एक्टर बनने का ही देखा था. बट समहाउ सिंस यू नो आई डिड माई मास कम्युनिकेशन एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो मुंबई वॉज अ डिस्टेंट थॉट. बट मैं यहाँ आई एंड जैसे ही मुझे चांस मिला वायाकॉम के बाद टू गेट इनटू एक्टिंग, आई जस्ट जम्प्ड इनटू इट. सो सेलिब्रिटी सपना तो देखा था, पर लोग मुझे कभी पहचानेंगे यू नो आउट ऑफ माई ऐसा जर्नलिज्म और व्हाटएवर मीडिया वर्क. फॉर मी लाइक यू नो गरिमा गोयल, गरिमा's गुड लाइफ, दैट इज समथिंग जो मैंने अब वो होता है राइट व्हेन यू गो आउट एंड यस सो especially बच्चे, उनके parents, and the moment they see like गरिमा दीदी, गरिमा's good life, so things good, yeah. और I also wanted to ask you, like you are from Delhi and a lot of people in Mumbai can't make it so big, you know. तो उनके लिए what do you want to say? Because when you guys come from there, you have this जुनून, करो या मरो. हम जो मुंबई वाले होते हैं, हम चिल्ड आउट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, like you know, रहने के लिए घर होता है लोगों के पास, खाने पीने के बारे में सब पता होता है, ट्रेन में कैसे ट्रैवल करते हैं वो भी पता होता है. Same story with you that you had to like do or die. It was because it's like you know you have to make it if you are in this city and you have to accept this city wholeheartedly. अगर आप मुंबई के बारे में कंप्लेन करते रहोगे कि you know ट्रेन्स में कैसे जाएंगे या खाना ऐसा है. When was the last time you went into the train? Very recently, yeah, very recently. अरे टाउन यहाँ से जाना is like a headache. So ट्रेन में बैठो चुपचाप और
Churni Road. So train is fun, but you have to accept the city as it is. और यहाँ के तौर तरीके सीखने में थोड़ा वक्त लग जाता है. But once you get a hang of it, I think. But how has life changed since you've become like a legit celebrity now? मेरी लाइफ वैसी की वैसी ही है. मैं जाके पानी पूरी खाती हूँ. हाँ ऑफ कोर्स पानी पूरी खाती हूँ, चैलेंजेस बनाती हूँ पूरा दिन भर पानी पूरी खाने के. एंड यू नो ऐसा कोई सेलिब्रिटी हुड नहीं है यार रौनक. इट्स जस्ट दैट कि लोग आपके काम को जब थोड़ा अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, दे रिकग्नाइज यू, दे फॉलो यू. आई रिमेंबर यू नो आई वाज ट्रैवलिंग फॉर अ शूट टू थाईलैंड एंड दिस वाज 2 years बैक, जब मेरा चैनल इतना बड़ा भी नहीं था. और मैंने उस समय एक वीडियो बनाई थी हाउ टू पैक यू नो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फॉर अ शूट. एंड व्हेन आई वाज इन पतेया, नॉट इवन लाइक बैंकॉक, वहाँ पे मॉल में देयर वर पीपल हु केम टू मी एंड आई वाज विद माय एक्टर फ्रेंड्स देन. तो उन्हें लगा कि उनको मिलने के लिए आ रहे हैं. एंड दे केम एंड सेड गरिमा यू आर इन थाईलैंड, हमने आपका वीडियो देखा था गरिमा's गुड लाइफ पे, एंड दैट इज हाउ वी नो दैट यू नो यू वर हियर. सो दे वर शॉक्ड कि यार हम सब एक्टर्स हैं, ये इसको भी एक्टिंग के लिए नहीं पहचान रहे हैं बल्कि इसके यूट्यूब चैनल के लिए रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. सो यू नो दैट डे आई रियलाइज द इम्पैक्ट एंड द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड इट वाज स्टिल कमिंग अप देन. I remember that so Garima had also, because she is a journalist by heart, maybe she's not practicing right now. That's true. तो जब मुंबई में पॉपकॉर्न के रेट्स बहुत बढ़ गए थे, so गरिमा का सनक गया. She went to one of the leading cinema chains and she did this video, became a viral video, you know. तो इट वॉज कॉल्ड पॉपकॉर्न का फटका. अरे यार मुझे बहुत गुस्सा आता था. टिकट लो 200 रुपए की या 150 रुपए की, एंड पॉपकॉर्न और पेप्सी के लिए यू आर पेइंग ब्लडी 300 400 500 इवन नाउ. सो मुझे तो बैन ही कर दिया था उस सिनेमा ने. मैं तो ऐसा स्नीक इन करके जाती थी बिकॉज मेरे घर के पास सिर्फ एक वही थिएटर है. दिन के आगे लोग को सिनेमा बैन करना पड़ा बिकॉज कोविड आ गया, यू नो. हाँ सो बट इवन नाउ यार आई स्टिल वांट टू फाइट फॉर दैट कॉज. अभी भी मैं वो थिएटर में गई, अब तो और 400 रुपए का पॉपकॉर्न हो गया है. पोस्ट कोविड टिकट से ज्यादा वो लोग अभी इसी से रिकवरी कर रहे हैं F&B से. सो I know, but do you feel like taking up causes on your platform, or you feel like you're more happy doing lifestyle stuff? टू बी ऑनेस्ट रौनक, मैं अभी पहले प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहती हूँ. आई फील फॉर अ लॉट ऑफ कॉजेज, बट आई ऑल्सो नो कि जब तक आपकी वॉइस इतनी रेलेवेंट नहीं है कि लोग आपकी सारी बातों को ध्यान से सुने, तब तक कोई कॉज पिकअप करके एंड देन लोग उसको ध्यान ही नहीं देते तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें पिकअप करती हूँ जो डेली लाइफ से भी रिलेटेड हो. जैसे पॉपकॉर्न मूवी हर कोई देखने जाता है, तो वो बहुत सिंपल सी चीज़ थी. एंड यू नो द पेट इंडस्ट्री, आई हैव अ पेट सिम्बा, लोग उसे भी बहुत पसंद करते हैं. ये रहा, आ जाओ. जब शूट शुरू नहीं हुआ था तो मतलब इतना परेशान कर रहा था. हाय टू एवरीवन. Shimbu, you want to be on my video? Yes, of course, he loves being on the video. जैसे ही मैं बोलती हूँ Hi guys, welcome to my channel Garima's Good Life. See, सिम्बा रिएक्ट करता है और मेरे फ्रेम में आके चुपचाप बैठ जाता है. इसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है by the way. अरे एंड पीपल स्टार्ट मिसिंग हिम. हाँ, मेरी व्यूअरशिप कम हो जाती है मेरे चैनल पे अगर मैं बाहर जाके वीडियोस बना लूँ एंड ही इज नॉट पार्ट ऑफ माय वीडियोस. लुक एट हिम, सो कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. देखा है ऐसा डॉगी कहीं पे? देखा है? सो कॉजेज मुझे पेट को भी लेकर है एंड आई वॉन्ट टू टेक अप अ लॉट ऑफ कॉजेज, बट प्रॉबेबली थोड़े और टाइम के बाद जब मैं खुद उतनी सक्षम हो जाऊं या मैं खुद इतनी पावरफुल हो जाऊं कि आई एम इन अ प्लेस ऑफ delivering a key message to people. True. So I will definitely. But what do you want to say to people who want to start not YouTube channel but be in the space, the kind of space that you are, or especially like अगर acting भी करनी हो, क्योंकि acting is a very ऐसा medium जो बहुत ही ज़्यादा unreliable सा है. हमेशा पता नहीं होता next check कहाँ से आएगा. तो you've lived all of that. मैंने बाय द वे एक्टिंग करना बहुत कम कर दिया. फाइनली आई हैव कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन इज माय थिंग. या you won't get time because if you do this in a dedicated way then there is no time left to do anything else. Because even consistency like जैसा I want to come to that, the difficulties and challenges that you face, because on camera everything looks great, but off camera की जो challenges है वो सिर्फ गरिमा बता सकती है. तो but quickly if you can tell people who want to start something on their own, what do you
suggest? See, I would say that it's never too late to start because कई बार लोग आपको बोलते हैं, आपको लगता है कि बहुत लेट हो गया, अब सोशल मीडिया बहुत आगे बढ़ गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, इतनी चैनल्स हो गई, कंपटीशन चैनल्स पहले से भी थे और भी आएंगे, बट you should have something unique to tell your audience. And social media एक ऐसा medium है ना रौनक, I would say, जहाँ पे only your real personality shines. हाँ, आप अगर कुछ भी मेड अप करोगे ना, वो यहाँ नहीं चलता है. यू हैव टू बी ट्रू टू योर ऑडियंस, यू हैव टू शो योर ट्रू सेल्फ टू देम बिकॉज इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट मीडियम. सो अनलेस आपकी पर्सनैलिटी शाइन करेगी चैनल पे, चीज़ें नहीं चलती हैं. एंड यू शुड हैव समथिंग टू कम्युनिकेट टू योर ऑडियंस, जिसके लिए दे शुड लुक फॉरवर्ड टू being there on your channel and appreciate you on social media. At least मेरी जर्नी तो ऐसी ही रही है. एंड मैंने एक्टिंग के बारे में पहले लोगों को बताया, बट लोग मेरी पर्सनालिटी से भी उसके वजह से जुड़े एंड लोगों को लगता था कि मैं बहुत ऑनेस्टली बताती हूँ जो भी चीज़ मैं बोलती हूँ. सो आई वांटेड टू हेल्प द अदर पीपल आउट जो एक्टिंग करियर बनाना चाहते थे मुंबई में, बिकॉज इट्स नॉट ईजी फॉर पीपल हु कम फ्रॉम आउटसाइड एंड हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री. बट इट्स आल्सो नॉट इजी टू cater to so many people. उनके मैसेजेस को रीड करो, आंसर करो, like you must be going through that 10 times more than anyone else, कि इतने सारे messages आते हैं. I do. I get a lot of mails और मैं कोशिश करती हूँ कि जितने लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ, because that is one cause when you were talking about causes. That was a big cause that you took up. उसके बाद मुझे लोगों ने गुरु मैया और टीचर और ये सब बोलना शुरू कर दिया, which I was not. मेरे लिए भी, because when I started my career, like not my career, but when I started in entertainment journalism like that, तो I used to see गरिमा writing scripts or checking scripts, editing. इतना उसका दिमाग चलता है ना कंटेंट में, that I can say it on camera without any hesitation के इस बंदी से ज़्यादा कंटेंट की समझ मेरे पूरे लाइफ में मैंने किसी का नहीं देखा इतना. वाह, थैंक यू. No, I really mean it. Like video content, मतलब गरिमा is बाप of everyone. So really sweet of you, Rona. So yeah, I mean. अच्छा. So what challenges do you face? Like मतलब कैमरा पे तो we see you doing, इसी घर में कितना कुछ होता है और millions of views आते हैं, but पीछे क्या हो रहा होता है? Like how do you manage your personal life and everything? पीछे ये हो रहा होता है कि मुझे सबसे गालियाँ पड़ रही होती हैं because I always invade people's personal spaces, be it my parents, my brother. कंटेंट क्रिएटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, उन्हें हर चीज़ में कंटेंट दिखाई देता है. मेरी मॉम मेरे लिए अगर पिज़्ज़ा बना रही थी, इट वाज लाइक अ लवली जेस्चर, और वो बेचारी सुबह सुबह उठ के ऐसा बिना नहाए धोए, मेरी फ्लाइट थी और मैंने वो भी शूट करना शुरू कर दिया. शी वाज लाइक खुद तो तैयार हो गई, मैं ऐसे खड़ी हूँ, मुझे शूट कर रही है. बट आई न्यू इट वाज अ मोमेंट बिकॉज माई मॉम वाज प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर मी एंड पीपल लव्ड दैट वीडियो वेयर आई सेड कि माई मॉम डिडंट वांट मी टू शूट इट बट स्टिल आई डिड. सो या घर वालों से कभी कभी ऐसा गाली पड़ती है, वो लोग अपसेट हो जाते हैं. उनके साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम काफी सारा भी है बिकॉज इट्स एन ऑनगोइंग थिंग. आप वीडियो के बारे में सोचते हो, फिर शूट करते हो, फिर एडिट करते हो, फिर उसको अपलोड करते हो, फिर तब तक अगला वीडियो शूट करने का टाइम आ जाता है. सो इट्स अ विशियस साइकिल. एंड अपने लिए अगर टाइम निकालना है या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है तो यू रियली हैव टू प्लान योर लाइफ अहेड. मतलब एटलीस्ट 3-4 वीडियोस बैंक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हो नहीं पाता है. सो और क्योंकि जॉब में क्या होता है कि आप 8 आवर्स करके छूट जाते हो उसके बाद, बट ये आपका खुद का है ना, तो आप कभी भी नहीं छूट पाते हो. रात को 12 बजे भी अगर आपको आइडिया आता है और आपको अगर ज़रूरी है कि चलो होली कल है तो मुझे आज ही करना है शूट, यू होली कैन नॉट वेट फॉर यू. लाइक यू आर मेकिंग अ होली वीडियो फॉर एग्जांपल, सेम विद मी. लाइक इफ आई एम मेकिंग अ न्यूज़ वीडियो या किसी एक टॉपिक पे, वो टॉपिक चला जाएगा, फिर मैं अगर बोलूंगा तो कोई फायदा नहीं. टाइम बाउंड है ना, सो यू हैव टू. एंड व्हेन यू आर योर ओन बॉस यू हैव मच मोर रिस्पांसिबिलिटीज एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन. सो yes, absolutely, yeah. But chalo, like we are almost, I've asked her all the questions, but there is actually so much. I'll do part 2 because I know you guys will tell me in comments. वो हम दुबई में करेंगे, part 2 हम दुबई में करेंगे. 100%, I'll hold her by this. और just जाते जाते I wanted to ask you now, where do you see yourself going from here, and do you miss the past life that you have left behind? नेवर. मैं हमेशा आगे देखती हूँ, मुझे पता नहीं होता फ्यूचर में क्या है मेरे लिए, बट आई जस्ट बिलीव इन डूइंग माई वर्क यार रौनक. बिकॉज अगर आप हर दिन अपने काम को एंजॉय कर रहे हो, हर दिन आप पैशनेटली अपनी लाइफ लीड कर रहे हो ना, आई थिंक उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ लाइफ में कुछ नहीं है मेरे हिसाब से. सो मुझे नहीं पता 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 दिन बाद, कल मैं क्या कर रही होंगी. आई डोंट नो, बट आई एम एंजॉइंग टुडेज conversation with Ronak right now. That's what I can tell you all. और जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है तो do you want to like
बिकॉज हाँ, और एक बात जो मैं बताना भूल गया, रिमेंबर व्हेन वी वर वर्किंग टुगेदर, तो गरिमा वाज एट दैट टाइम ट्राइंग सम एक्टिंग जॉब्स एंड ऑल दैट, एंड शी वाज वांटेड टू गो फॉर ऑडिशंस एंड ऑल, सो आई टोल्ड हर वेरी क्लियरली दैट सी I understand this because I have lived it at some point. I also wanted to do that. So I understand this dream. So if you want to go for auditions, you know, we should work together and you should go, and I will make sure that यहाँ पे कोई problem ना हो. Remember, we should That was do really that. sweet of you, of तो, course. तो I know how passionate you are about it. तो वो कितना फिर आगे अभी करना है? यार करंटली मुझे कंटेंट क्रिएशन में बहुत मज़ा आ रहा है. आई एम एन्जॉइंग दिस फेज. मैंने एक्टिंग को ना नहीं बोला है, बट अभी मुझे ऑडिशंस में जाकर धक्के खाना एंड यू नो आई डोंट लाइक दैट. सो वट एवर वर्क इज कमिंग माई वे नाउ बिकॉज ऑफ माई बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड यू नो बीइंग एट द स्टेज वेयर आई एम, I'm taking up only those jobs, so ad films mostly, हाँ ad films mostly, and बाकी मतलब obviously acting सीखी है, acting की है 5-6 साल, so वो भी मुझे करना है, but फिलहाल मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है. कभी डर नहीं लगा when you were actually going into this big bad world of Bollywood acting? It is a very intimidating and scary world to be in. I mean, वहाँ से कोई एक्सपीरियंस बता दो. वहाँ से तो बहुत एक्सपीरियंसेस थे. अच्छा भूल गया था रौनक. ठीक है मैं बता देती हूँ. कंट्रोवर्सी करते हैं ना? हाँ कराती हूँ मैं, पूरी कंट्रोवर्सी कराती हूँ. नो सो सी वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम नॉट लाइक चेजिंग माय एक्टिंग ड्रीम राइट नाउ इज ऑल्सो दैट एक तो मैंने एक्टिंग करियर बहुत लेट स्टार्ट किया था. लड़कियाँ बहुत यंग स्टार्ट करती हैं, सो दे हैव अ लिटिल एडवांटेज. आई डिड नॉट हैव दैट एडवांटेज. स्टिल मेरा ड्रीम पूरा हो गया कि मुझे एक्टिंग करनी थी. यू आर अ नोन फेस नाउ. सो हाँ, सो एक्टिंग मैंने की एंड मुझे मज़ा आया, बट दैट इंडस्ट्री इज इट्स अ वेरी टफ नट टू क्रैक. लाइक यू नो दे हैव देयर ओन वेज एंड मीन्स. और लोग जो बोलते हैं ना बातें, चाहे वो कास्टिंग काउच हो, चाहे यू नो ऑल द डर्टी पॉलिटिक्स एंड द थिंग्स दैट हैपन, वो सब सच है. लेकिन it is yes and you have spoken about it earlier. I have spoken about it earlier also. It is how you wade your way through, you know, around it. And it is not easy. It is not easy. Lot of people give in to the temptation because it's like एक ही चांस होता है. अगर आपने वो मिस कर दिया, मैंने बहुत सारे मिस किए हैं क्योंकि मैं हमेशा हाँ I was always, मेरा मॉरल कंपस हमेशा मतलब सही जगह पे रहता था, तो मैंने नहीं क्रॉस किया उस लाइन को. बट बहुत लोग कर देते हैं. वी शुड नॉट जज देम फॉर इट बिकॉज सबका अपना अपना ड्रीम होता है, जर्नी होती है अलग. सो लॉट ऑफ पीपल गिव इन, लॉट ऑफ पीपल डोंट. बट अगर आप आ रहे हो यहाँ पर, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के आना, बिकॉज जो हम सोच के आते हैं, जो सपने हमें सिर्फ पर्दे पर दिखाई देते हैं, इट्स नॉट एज ग्लॉसी, you know, not at all as glossy. I remember you did even couple of videos when the Sushant Singh episode happened. That's you know, you were, because you have not only interviewed them, you've seen both the sides as a journalist also and as an actor also. So you spoke and you know you gave your 2 bits about how the I always wanted to tell the reality, but अभी मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ रौनक, I'll not lie. कास्टिंग काउच बाकी सब चीज़ें हैं, बट इंडस्ट्री थोड़ी सी सिस्टमैटिक हो रही है. अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं एंड यू नो थिंग्स आर हैपनिंग इन अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक वे नाउ. सो देयर आर चांसेस. अगर आप टैलेंटेड हो और अगर आपको सही दरवाजे पता है कहाँ जाके नॉक करना है, यू माइट गेट एन एंट्री इफ यू रियली डिजर्व इट. पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत इश्यूज होते थे, बट अभी चीज़ें पहले से काफ़ी बेटर हैं. और सोशल मीडिया भी है तो पीपल आर स्कैर्ड, यू नो, लाइक yes, टू डू समथिंग because the voices are being heard today, so it's so easy to actually go and make yourself heard. Okay. Yes. Okay, on that serious note, I guess anything fun that you want to add, because this is the one conversation I didn't prepare at all for. पहले तो मुझे पता नहीं था कि हम मिलेंगे या नहीं, और दूसरी बात हमने सोचा था कि हम मिलेंगे, वीडियो हम साइड में रखेंगे, पहले हम चाय पियेंगे जो हमने पी और कुछ खाएंगे पियेंगे, बातें करेंगे, फिर अगर मूड हुआ तो वीडियो करेंगे. तो इसलिए तो कुछ अगर रह गया हो फन चीज़ें कुछ बोलनी हो तो प्लीज़ गो अहेड, एनीथिंग. रौनक जी को अब क्या दुबई का कौन सा गोल्डन वीजा मिल गया है. गोल्डन वीजा मिला है, गोल्डन बटन नहीं मिला. मिल जाएगा. सो प्लीज यू नो ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. आप इसको सपोर्ट करते रहो. एंड ही इज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड एट हार्ट, and I love him. Thank you so much. It was so nice meeting you after so long, Ronak. And thank you so much. Wish you all the best. Same to you. Thank you. I hope I see you next time in Dubai and we do this part 2 over there. Yes. Bye, Shimbu. Bye bye. Say bye to everyone. Say bye. Okay.
थक गए Oh my God. चुप कर, BTS मत दे।